गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ NMMS ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਟਾਈਪ 3 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਟਾਈਪ 3। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 1। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਵਰਤੇ ਹੋਣਗੇ, A B ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, C D ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ABCD ਵਰਤਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ आओ देखते हैं। देखो हम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन लिखिया है, C is brother of A, B is daughter of A, E is sister of C and D is brother of B. Who is uncle of D? ਕਹਿੰਦਾ D ਦਾ ਅੰਕਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਸ A B E C ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। C is brother of A। आ A है ते आ की है? C है। दोवें की है जिहड़ा हैगा C A दा की है? ब्रदर है। यानी कि ये तो पता चल गया कि C मुंडा है। हुण यही मुश्किल है, देखो इत्थे नाम नहीं दिते, A B C D E वरते है, तो हुण इस तो ये नहीं पता चलता कि मुंडा है कि कुड़ी है। ठीक है जी, इस च औखा है, इस गल दा आपां नूं मुश्किल आंदी है कि आपां नूं सैक्स नहीं पता चलता कि मेल है कि फीमेल, मुंडा है कि कुड़ी। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ B is daughter of A। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ A ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? B ਹੈ, ਤੇ ਡਾਟਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ E is a sister of C। ਕਹਿੰਦਾ C ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? E ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ E ਕੀ ਹੈ? ਕੁੜੀ ਹੈ। C ਮੁੰਡਾ, E ਕੁੜੀ, B ਵੀ ਕੁੜੀ, ਪਰ A ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ D is brother of B। ਕਹਿੰਦਾ B ਦਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? D ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ D ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ D ਤੇ A ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਨ ਦਾ, D A ਦਾ बेटा हो गया, क्योंकि B बेटी है तो इनका भरा है, तो फिर A ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? बेटा। Who is uncle of D? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ D ਦਾ ਅੰਕਲ ਕੌਣ ਹੈ? A ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇ E ਕੀ ਹੈ? ਭੂਆ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਭੈਣ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਭੂਆ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ C ਮਰਦ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ? ਅੰਕਲ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ D ਆਪਸ਼ਨ C D ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅੰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ C is nephew of father of A, D is cousin of A but not a brother of C, how is D related to C? ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ C A ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨੈਫਿਊ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ A ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਦਾ ਨੈਫਿਊ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ C ਤੇ A ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ C ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ A ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਯਾਨੀ A ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, C ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। C ਨੈਫਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ C ਮੁੰਡਾ, ਜਾਂ ਐ ਕਹ ਲਓ ਉਲਟ ਕਿ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। A ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? C। ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, he is cousin of A। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ A ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ D, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ A ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ? D ਹੈ, but not a brother of C। ਪਰ C ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ A ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ,
पर सी दा ब्रदर नहीं। जे सी दा ब्रदर नहीं तो इसका मतलब सी दा की होगा सिस्टर होगा। कहंदा देखो एक सी मुंडा है, मुंडे दा मैं कहूंगा चाचा या ताया फादर, उनका मुंडा कौन है ए दा कजन एक डी है। ठीक है, हुण कहंदा जेड़ा डी है वो सी दा भरा नहीं है। जे डी सी दा भरा नहीं है तो इसका मतलब भैन होगी, ते जे भैन है फिर इसका मतलब ए की होगी वुमन होगी, फीमेल आ गया अपने को। तो हम क्वेश्चन थे कि हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, कि जेड़ा डी है वो सी नाल किवें संबंध रखदा है। डी सी दी की है भैन, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जदों ने ये गल कही है कि जेड़ा डी है वो सी दा भरा नहीं है लेकिन है कजन, मतलब ए ते सी चाचे ताए दे मुंडे है, तो फिर डी भी ए दा कजन है, तो फिर ए भी आपस में कजन्स ही होए सारे। जे कजन्स है तो उन्होंने कि डी सी दा भरा है नहीं, तो फिर इसका मतलब भैन होगी। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन सिस्टर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, कहता इन ए पार्टी देयर इज अ ग्रैंड मदर, मदर, फादर, देयर 4 sons, their wives, each son has 2 daughters, what is total number of females in a family? जे तुहानू याद होवे आपां इदां दा क्वेश्चन एक पहला भी कीता सी जिंदे च आपां मेल्स दी काउंटिंग दसी सी, हुण इस च आपां फीमेल दी दसनी है। तां आओ शुरू करिए। एक पार्टी च पहला की है, एक ग्रैंड मदर है तां यानी कि 1 नंबर, फिर एक की है मदर औरत, आ भी होगी, फिर की है फादर, आपां कल्ली औरतां दी देखनी है। ठीक है जी, उन्होंने 4 बेटे ते 4 बहुआं, ते यानी कि 4 बहुआं हो गईयां। आ ग्रैंड मदर होगी, दादी मां ते 4 बहुआं, इन्नियां औरतां हो गईयां। अगे ईच सन हैज 2 daughters, हुण 4 बहुआं दे 2-2 बेटियां। ठीक है जी, ते हुण व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, यानी कि इत्थे इन्नी उन्हां दी फैमिली है, हुण इन्नियां औरतां, 1 ते 1 2 प्लस 4 आह हो गईयां, ते आह 2 ते 2 4 ते 2 6 ते 2 8 आ हो गईयां। 4 मुंडियां दे 2-2 कुड़ियां। ठीक है जी, यानी कि टोटल 8 कुड़ियां हो गईयां, 4 मुंडे हो गए, 1 दादी मां ते 1 मां हो गए। किन्ने हो गए? 4 ते 2 6, 6 ते 8 किन्ने हो गए? 4 ते 2 6, 6 ते 8 किन्ने हो गए? 14, यानी कि आंसर आ गया ए ऑप्शन 14। ठीक है जी, कहता हूं चौथा क्वेश्चन है, एम इज सिस्टर ऑफ एन, एन इज सन ऑफ ओ इज हस्बैंड ऑफ पी, तो हाउ इज पी रिलेटेड टू एम? कहता पी एम नाल किवें रिलेटेड है। हुण एम एन दी सिस्टर है, यानी कि एम ते एन की आपस च सिस्टर है। हुण एम दा आपां नूं पता चल गया कि एम की है, एक लेडी है, एक औरत है, क्योंकि ये भैन है एन दी, तो इत्थों पता चल गया कि एम औरत है। एन औरत है कि मर्द, ये नहीं पता चलिया। एन इज सन ऑफ ओ, कहता एन जिहड़ा हैगा ओ दा की है सन, यानी कि इत्थों ये पता चल गया कि एन की है मर्द, एम औरत है, एन मर्द है, एम भैन है एन दी, ते एन बेटा हैगा ओ दा। तो इसका मतलब फिर एम की हो गया? ओदा डॉटर होगी। जे आहा एन बेटा ओदा, तो एम बेटी होगी ओ दी। अगे ओ इज हस्बैंड ऑफ पी, कहता ओ पी दा हस्बैंड है, तो इसका मतलब इत्थों ये पता चल गया कि ओ मर्द है, यानी कि इन्हां दोवां दा पिता है, ते पी इन्हां दोवां दी की है? मां है। ओ की है? हस्बैंड है पी दा। ठीक है जी, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम? पी एम नाल किवें रिलेटेड है? पी जिहड़ी हैगी है एम दी की होगी? मां होगी, क्योंकि एम भैन है एन दी, एन बेटा हैगा ओ दा, ते ओ फिर इसका मतलब एम ओ दी भी बेटी होगी। हुण ओ हस्बैंड है पी दा, इसका मतलब ओ की है? फादर है दोवां दा, ते पी की है? दोवां दी मदर। ते इत्थों पता चल गया कि पी की एम दी मदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कहता ए इज सन ऑफ बी एंड सी। ठीक है जी, D is the son of sister of B and has 1 daughter E. F is maternal uncle of D। तो क्वेश्चन दिते है 3। ठीक है जी, हुण पहला आपां इत्थे फैमिली ट्री बनाइए। कहंदा A is the son of B and C, यानी कि B ते C हस्बैंड वाइफ है, इन्हां दा बेटा कौन है? A है, सन है। ठीक है जी,
पर हस्बैंड वाइफ BC है, पर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਹੈ। D is son of sister of B, ਕਹਿੰਦਾ B ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, D ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, B ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, D ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ B ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। and has one daughter E, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, यानी कि ए दे माता पिता B and C है, B दे एक भैन है, उनका एक मुंडा D है ते बेटी की है E है, ठीक है जी। F is maternal uncle of D, कहंदा हुण D दा maternal uncle यानी कि मामा कौन हैगा F है, D दा मामा कौन हैगा F है, यानी कि जे D दा मामा F है ते D दी जिहड़ी मां है उनका ब्रदर हो गया F, इसका मतलब F मेल हो गया, इत्थों ही पता चल गया। D दी मां दा भरा मामा हुंदा है, तो इसका मतलब F मेल है, ये क्लियर हो गया। हुण उन्होंने क्या पहला क्वेश्चन, हाउ इज E रिलेटेड टू F, कहंदा E F दी की लगी। हुण इत्थों E लड़की है क्योंकि उन्हें क्या सी कि E की एक डॉटर है, तो E लड़की है, D बेटा है। हुण जे D दा मामा F है ते D दे दोवें भैन भरा है, फिर E दा मामा भी F होया, तो फिर E F दी की होगी भतीजी, भतीजी दा मतलब इंग्लिश की हुंदा है नीस, यानी कि आंसर आ गया C ऑप्शन नीस, ठीक है जी, क्योंकि D ते E दा मामा F है ते फिर E भतीजी हो। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी नेफ्यूज डज F हैव, कहंदा F दे किन्ने नेफ्यूज है, देखिए हुण देखो एक दा F दा नेफ्यू हो गया D, ठीक है जी, एक दा नेफ्यू अपने को, दूजा नेफ्यू देखो B दी भैन जेड़ी है उनदा भरा F है, यानी कि फिर B दा भरा भी तो F होया, B उन्होंने कहा सी B दी भैन दा मुंडा D है, ते जेड़ी D दा मामा F है, इसदा मतलब F इसदा भी भरा है ते B दा भी तो भरा होया, ते फिर B दा मुंडा भी तो F दा भतीजा होया, तो यानी कि एक भतीजा D है ते एक भतीजा कौन है A, तो टोटल किन्ने भतीजे हो गए, 2 भतीजे हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर C। अखीरला क्वेश्चन, हाउ इज A रिलेटेड टू D, कहंदा हुण A D नाल किवें रिलेशनशिप च है, देखो A दा रिश्ता D नाल की है, मामे दा मुंडा हो गया है, A दा की हो गया ब्रदर हो गया, कजन ब्रदर हो गया, ठीक है जी। हुण इहदे च कजन वगैरह दा किते नहीं लिखिया, मैटरनल ब्रदर लिखिया, तो आपां ओही ऑप्शन नूं टिक करांगे, C ऑप्शन मैटरनल ब्रदर। A दी मां, A दे जिहड़े मां प्यो है उन्हां च एक B ते C है, उन्हां दी भैन दा मुंडा D है, ठीक है, यानी कि दोवें या तो भूआ दा मुंडा हो गया, जे B नूं आपां मेल मन्नीए तो फिर भूआ दा मुंडा D हो गया, जे B नूं आपां फीमेल मन्नीए तो फिर मासी दा मुंडा आ गया, यानी कि कजन्स हो। पर हुण इत्थे कजन्स ब्रदर कुछ नहीं दिता, कल्ला मैटरनल ब्रदर दिता है, तो इस करके आपां इस ऑप्शन नूं टिक करता, आंसर आ गया C ऑप्शन मैटरनल ब्रदर, ठीक है जी। तो ये सी अज दी साडी ब्लड रिलेशंस टाइप 3 दा पार्ट 1। इहदे विच असी अज एक डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देखे जिंदे विच नाम नहीं दिते, ABCD करके रिश्ते दसे हुए। हुण उन्हां विच की मुश्किलां ते सौखा सी आपां देखिया, ते जिहदे क्वेश्चंस नूं किवें सॉल्व करना है ये भी आपां सीख लिया। उम्मीद है तुहानूं चंगी तरह सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होगा। जे कोई प्रॉब्लम है तो तुसीं सानूं कमेंट्स 'ਚ जरूर दसो। जान तो पहला प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलो, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।